Very good morning to all. Welcome to all in physics class. Dear students, in previous video we have studied about the center of mass, and today we will discuss about the motion of center of mass. So the topic is motion of center of mass. Clear? चलिए स्टार्ट करते हैं. Suppose a body in three dimension. In three dimension means flat. Along x-axis, along y-axis, along z-axis. ठीक है? चलिए. Along x, along y, along z-axis में अलग अलग पार्टिकल्स. उन अलग अलग पार्टिकल्स का देखिए, इसको कहा मैंने पार्टिकल m1, इसको कहा मैंने पार्टिकल m2, इधर कहा मैंने पार्टिकल m3, इधर कहा मैंने पार्टिकल mn, और वन स्पेशल पार्टिकल whose position is suppose, whose position vector is r, where the center of mass to be concentrated. This is the center of mass. So the position of all particles r n. This is r3, r2, r1. Clear? Now the particle is moving around the center or around its axis. Particle is moving means under the acceleration of angular velocity. Particle is in motion around the center of mass. तो क्या कहेंगे? Let a system of n particles moving around its axis of center of mass. That is center of mass यानी RCM equal to m1 r1 plus m2 r2 plus and so on mn rn divided by m1 plus m2 plus and so on. ठीक? That is RCM equal to m1 r1 plus m2 r2 plus and so on mn rn divided by capital means m1 equal m1 plus m2 plus and so on. सबका टोटल मास कितना है? कैपिटल है. क्लियर? So we have discussed the content in previous video for the center of mass. ठीक? Next. Now in final term of the position, that is capital M here, ये mass को मैंने इधर दिया बेटा, R center of mass equal to m1 r1 plus m2 r2 plus and so on mn r. Clear? This is the center of mass with position. Equation number first. Now for the next term,
means velocity of center of mass. Velocity of center of mass, that is by differentiating equation 1 with respect to t, that is capital M dr over dt, और इसे का सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 dr1 over dt प्लस m2 dr2 over dt plus and so on mn drn over dt. ठीक है, चलिए देखो dr over dt होता है बेटा वेलोसिटी, बट लेकिन dr over dt इक्वल टू वेलोसिटी। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन के बाद dr over dt that is the rate of change of position, rate of change of position vector that is the velocity, तो इसे वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट किया, देन m कैपिटल dr over dt v कैपिटल और बेटा सेंटर ऑफ मास दैट इज ci इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस एंड सो ऑन mn vn, ये लीजिए, ठीक, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी वी नो, इसको इक्वेशन नंबर बेटा 2 अलॉट करता हूं ना, वी नो क्या करेंगे, मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम, मोमेंटम दैट इज जिसे P कहते हैं, तो ये क्या बन गया टर्म, दिस इज द कैपिटल P सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 v1 p1 स्मॉल p है बेटा ये प्लस p2 प्लस एंड सो ऑन pn, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन नंबर 3, दिस इज द रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास, यानी मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास मींस momentum of center of mass. चलिए, so this is the term of we have discussed in the previous video about the center of mass for velocity. Velocity यहां तक पिछले वाले वीडियो में हमने कर लिया था, ठीक है। अब इसी टर्म में मैंने क्या किया, जो मास इनटू वेलोसिटी के टर्म को मोमेंटम के टर्म से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इसी को टर्म को आगे बढ़ाते हुए बात करता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इटसेल्फ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में देखो क्या दे रखा है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बाय अगेन differentiate, अगेन डिफरेंशिएशन से देखो m बेटा कैपिटल एज इट इज, ये d ओवर dt ऑफ v और इसे लिखा बेटा सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, समझ गए होंगे आपको क्या करना था या क्या किया मैंने, मैं दोबारा से इसे बात करूं, यहां लिखो इधर m as it is d over dt of v को लिखा सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 d over dt of v1 प्लस m2 d over dt of v2
प्लस एंड सो। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। लास्ट कहां तक जाएगा? एम। क्लियर? इसको इक्वेशन नंबर बेटा 4 कहो। हाँ 4। देखिए, सिंस बेटा dv over dt is known as acceleration यानी a, so m ये कहेंगे a और बेटा सेंटर ऑफ मास। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक, प्लस mn a। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए अगर बात करूं, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर बेटा 5। a सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस एंड सो ऑन mn an डिवाइड बाय कैपिटल M। That is the same term as this. This is the center of mass for the position vector. This is the center of mass for the acceleration. मैंने कहा इक्वेशन नंबर 6। This is center of mass for acceleration. This is the center of mass for the acceleration. क्लियर? चलिए अभी इसी टर्म को फिर कंटिन्यू करते हैं आगे जी। सेंटर ऑफ मास में टर्म पढ़ा हमने पहले पोजीशन रखा था, पोजीशन और फॉर द सेंटर ऑफ मास। उसके बाद बेटा पढ़ा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी मास इनटू वेलोसिटी को देखा। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा एक्सीलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी को एक्सीलरेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ मास इनटू वेलोसिटी से हमने मोमेंटम डिटरमाइन कर दिया, तो मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ गया। आफ्टर दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसे dv ओवर dt कहते हैं, उसे एक्सीलरेशन कहते हैं, यानी a कहते हैं इसको। ठीक, तो एक्सीलरेशन m into a equal to ये टर्म आ गया। This is the center of mass for the acceleration. From equation 5th, from equation 5, 5th equation से, 5th equation के लिए हमको क्या पता है कि F equal to ma होता है, यानी mass into acceleration होता है। तो mass into acceleration को तो कहा मैंने कैपिटल F, सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 a1 यानी इसे कहा F1 प्लस F2 प्लस एंड सो ऑन F। ठीक, ये आ गया क्या? सेंटर ऑफ मास फॉर द फोर्स, सेंटर ऑफ मास फॉर द फोर्स। सो हाउ इफ वी कैन represent in the short term or in brief term, that is center of mass for the force, यानी FCM equal to summation I equal to 1 to n. This is the center of mass for the, this is the center of mass for the force। ठीक, ये फोर्स के लिए सेंटर ऑफ मास आ गया, ये फोर्स के लिए सेंटर ऑफ मास आ गया। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम एंड फोर्स ऑल आर टर्म फॉर द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। सेंटर ऑफ मास में टर्म पढ़ा हमने पहले पोजीशन रखा था, पोजीशन और फॉर द सेंटर ऑफ मास। उसके बाद बेटा पढ़ा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी मास इनटू वेलोसिटी को देखा। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा एक्सीलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी को एक्सीलरेशन कहते हैं।
अच्छा, यहाँ मास इनटू वेलोसिटी से हमने मोमेंटम डिटरमाइन कर दिया, तो मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ गया। आफ्टर दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसे dv ओवर dt कहते हैं, उसे एक्सीलरेशन कहते हैं, यानी a कहते हैं इसको, ठीक। तो एक्सीलरेशन m into a equal to ये टर्म आ गया। दिस इज द सेंटर ऑफ मास फॉर द एक्सीलरेशन। फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन 5, फिफ्थ इक्वेशन से, फिफ्थ इक्वेशन के लिए हमको क्या पता है कि F इक्वल टू m होता है, यानी मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास इनटू एक्सीलरेशन को तो कहा मैंने कैपिटल F, सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1a1, यानी इसे कहा F1 प्लस F2 प्लस एंड सो ऑन F, ठीक। ये आ गया क्या, सेंटर ऑफ मास फॉर द फोर्स, सेंटर ऑफ मास फॉर द फोर्स। सो हाउ इफ वी कैन रिप्रेजेंट इन द शॉर्ट टर्म और इन ब्रीफ टर्म, दैट इज सेंटर ऑफ मास फॉर द फोर्स, यानी FCM इक्वल टू समेशन I equal to 1 to n. This is the center of mass for the, this is the center of mass for the force, ठीक। ये फोर्स के लिए सेंटर ऑफ मास आ गया, ये फोर्स के लिए सेंटर ऑफ मास आ गया। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम एंड फोर्स ऑल आर टर्म फॉर द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है।